अघोरीज को जो है वो नशे की क्यों जरूरत होती है? There are certain substances that are taken to enhance their sadhana. Okay, so वो marijuana लेते हैं या नहीं, according to me they don't. अभी corruption होता है सब में. We cannot paint the entire canvas की In one. We can't. एक को देखा तो सब लोग ऐसे नहीं होते हैं. I've seen some smoking ganja, but why? Only because they go into a transcendental state, a trance state, so that it helps them to increase their intensity of meditation, nothing else. Even when they chant, जब वो उच्चारण करते हैं, they say it with so much of robustness. विश्वेश्वराय विषकंठ विभूषणाय कर्णामृताय शशिशेखर धारणाय कर्पूर कांति धवलाय जटाधराय दारिद्र्य दुख दहनाय नमः शिवाय दारिद्र्य दुख दहनाय नमः शिवाय दारिद्र्य दुख दहनाय नमः शिवाय. ये मेरा फेवरेट श्लोक है. एक उदाहरण दे रहा हूँ. So power. They say it with the power. It's like आपने किसी को पूछा कि are you confident? और वो बोला yes sir I'm very confident. तो आप बोलेंगे पंक्चर हो गया. But if you ask somebody are you confident and the person says yes sir I'm confident, वो आवाज में आ जाता है उनकी personality of confidence. Similarly अघोरीज में वो ताकत है. और शिव भी वही ताकत देखते, कॉन्फिडेंस देखते, तब वरदान देते. They are basically trying to get Shiva to look at them and say okay. आपकी किताब थी व्हिस्लिंग विच, वहां पर मानव था, यहाँ पर सुब्बू है. सो ये मानव, सुब्बू या पूर्णा, ये कहाँ तक के सिमिलैरिटी रखता है आपकी क्यूरोसिटी से? क्योंकि वो तीनों की जर्नी भी वैसी ही कुछ है. ये सब, ये जो तीन है ना प्रोटैगनिस्ट, ये मेरे ही क्यूरियोसिटीज के अंश हैं. इट्स मी, आई कांट से इट्स कंप्लीटली मी, आई कांट से. बट सुब्बू इज अघोरी. यस, सुब्बू इज अघोरी. उसमें वो है. पूर्णा में, इन दैट बुक एडवेंचर्स ऑफ पूर्णा, बाय द वे, ये तो उसमें देयर इज अ पार्ट ऑफ मयूर हु इज कीन टू नो. उसके इमेजिनेशंस है, लेकिन इट्स बेस्ड ऑन सम रियलिटीज. इवन द बुक व्हिस्लिंग विच में जो गांव का, हाँ, and how he is interested कि क्या है भाई ये. I know. You want to discover तो that. ये मुझे पता नहीं काजी क्यों मेरे में ऐसे थॉट्स आते हैं, लेकिन पता नहीं यार. By the way, I've written a new book called Antariksh. Okay. Which I don't think I've spoken to you ever before, but Antariksh is a book which is about a father's search for his astronaut daughter who is lost in space. She's an astronaut through NASA. And she's presumed, she as in the spaceship is presumed to go off, and that crew with his daughter is presumed to be dead, which it isn't. She's on a planet called Antariksh, and she contacts her father, and फिर वो प्रयत्न करके जाता है अंतरिक्ष में on a different planet to bring her back, and he brings her back or not, I don't know. उसमें the name of the father is Mayur. And the name of the daughter is Malvika, my daughter. Your daughter. But finally you came in the picture. मतलब he's slightly on the way to become an actor. So मुझे बताइए, ये अघोरीज का जो एकदम strong day होता है, जहाँ पर वो अपने पावर और अपने शक्ति के लिए बहुत strong, like काली चौदस मैंने एक दिवाली की रात सुनी थी, ऐसी उनके लिए भी कोई रात होती है जो अल्ट्रा पावरफुल होती है? महाशिवरात्र होता है. उस दिन the energies, the vibrations are extremely तीव्र, intense. तो ऐसे कहा जाता है कि महाशिवरात्रि के रात को अगर आप साधना करते हैं, the impact of that is much higher, very very strong. So अघोरी साधुस उस रात को they spend more time in the highest intensity meditation. To please शिव and शक्ति. To please would be more आराधना. उनकी they remember and do their japa. और जो कुछ उनकी क्रियाज होती हैं वो करते हैं. हमें भी कहा जाता है कि इस दिन रात को sit and do as much japa as possible because it's a special day. Of course, connected to Shiva only.
So that's the night they do. So काली चौदस क्या है फिर? मतलब ये नेगेटिव पावर के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग नाइट होती है जो दिवाली के एक दिन पहले होती है। देखो क्या, I am aware of this, but I know for sure that जैसे positives होते हैं वैसे negative भी होती हैं. So sometimes people can I keep using the word misuse because they can also divert the energies in a way where it gives them strength to do the negative things as well. But that is possible. But it's very small percentage. Should I say that your book Aghori, the untold story, will be more enlightening Yes. and exposing these falsification? Yes, because it's purely from what I have understood about Aghoris, and when I started studying them, मुझे ये समझ में आ गया कि यार लोगों ने क्या बना के रखा है, मतलब उनको cannibals तक कहा है यार. हाँ, but that is not truth. Absolutely not. Cannibalism क्या होता है? Cannibalism is where you cannibalize on somebody of your own family. As in, animals में भी होता है, humans में भी होता है, tribals में होता था. Aghoris only consume the जो already मर चुके हैं, वो गए हैं. Only the body is there. Of course, there are energies. So they will have it as part of the kriya. ऐसे नहीं कि मुझे भूख लगी है, मैं ऐसे थोड़ी होता है. So कुछ है ना अघोरीज होते हैं जो बहुत हट्टी होते हैं. जैसे मैंने ना बीच में कुछ वीडियोस में ही देखा था कि वो एक पैर पे खड़े हैं तो खड़े ही है, एक हाथ पे खड़े तो उनका लाइफ का एजेंडा क्या होता है? It is, I'll tell you, I've understood this clearly and I've seen एक बंदा हाथ ऊपर करके यहाँ पे ऐसे खड़ा है and उसने संकल्प लिया था कि for 11 years वो हाथ ऊपर ही रहेगा. उसका हाथ जो है ना has become as thin as a rod. ऑलमोस्ट डेड हो गया उसका हाथ. Completely. वो भी नीचे नहीं, I don't know if he'll be able to bring it down. It is not to please anybody. It is to gain mastery over willpower, which can help them in their sadhana, in their meditation. Because ये ऐसे रखना भी is part of their meditation. ओह. हम लोग ऐसे मानते कि बोलते कि हाँ to impress Lord Shiva. It's not impressing. वो एक अपनी दीवानगी है उनकी. वो तो है ही है. But they are there to strengthen their willpower. I've seen people who they take sankalpa, like a promise, assurance to Lord Shiva. But उनका क्या है कि वो करने से they feel a sense of accomplishment कि मैंने किया है ये, मैं कर सकता हूँ. वो जो है that's part of their sadhana. कभी ऐसे पर्सनली इंटरेक्ट हुआ किसी से कि कब तक करोगे, कोई उसका टाइम पीरियड होता है उनके लिए? I have. So उनका क्या होता है देना करने के पहले वो एक लक्ष्य रखते हैं. अच्छा. इसलिए मैंने कहा संकल्प करते हैं. संकल्प मतलब डिटर्मिनेशन, कि संकल्प बोलते हैं उसको कि फॉर 1 year 12 months मैं इसी स्थान पे खड़ा रहूंगा और 10th year के कुंभ मेले में मैं छोड़ दूंगा. आई एम गिविंग एन एग्जांपल ऑफ अ पर्सन स्टैंडिंग. मतलब क्या, वो बैठेगा नहीं, वो स्टैंड ही होगा, वो सोएगा भी ऐसे. तो मैंने देखा कि they in fact build a small little thing to hold on to. Because technically उनका हाँ झूला टाइप, but they cannot. तो वो क्या शक्ति होती है उनकी, मनशक्ति इतनी स्ट्रांग होती है, आप सोचो. And what about their food and everything? उनका जो हम हमारे होते हैं ना, जो मॉर्निंग वॉशरूम जाना है, ये करना है, उनका अलग ही होता है. There is they don't eat much. और अगर करना जो कुछ है, जो फिजिकल एस्पेक्ट्स होते हैं एज ए ह्यूमन बीइंग, वो वहाँ पे करते हैं. आई नो ऑफ अ योगी हु नोज, हु हैज बीन इन मेडिटेशन, ऐसा नहीं नॉर्मल बट इंटेंस मेडिटेशन. ही ईट्स अ हर्ब. एक हर्ब होता है, वो खाने से उनको भूख ही नहीं लगती है फॉर 10 days 11 days. दे डोंट फील थर्स्टी, they don't feel hungry also. So 11 दिन वो कुछ खाते नहीं है. काजी their entire life का पर्पस कुछ अलग है, वो तीव्रता कुछ अलग है, इंटेंसिटी कुछ अलग है. हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं. हमारा टाइम आएगा, लेकिन तब तक we can only get inspired by that. There's a mudra
called Rechaka. Okay. ये जो है ना टंग टिप, they take it back and they touch the back of their throat. जहाँ पे ग्लैंड है, वो टच करने से वो the gland is secreted. It is the same viscosity as saliva. लेकिन वो अमृत होता है उनके लिए, because उससे उनको पावर they're able to meditate for a very long time. See, ये जो powers होते हैं ना काजी, the powers will come only with meditation. ये गिफ्ट नहीं है कि मुझे दे दो पावर. They have to sit for long for and हमें लगता है बहुत बाप रे, उनके लिए सब ठीक है. मानसरोवर जो है, आपने पूरा कैलाश मानसरोवर आप गए हो विद योर गुरु स्वामी जी ओनली. सो आपने क्या एक्सपीरियंस किया वहां पर जाके? सृष्टि, नेचर इज वेरी डिफरेंट. हिमालयाज इज वेरी डिफरेंट. मानसरोवर में ऐसे लगता है कि ये कुछ अद्भुत सरोवर है जो पृथ्वी पे ही नहीं है, कुछ अलग है. बिकॉज द स्केल इज सो बिग, द वाटर इज सो क्वाइट, एंड जो स्काईज यू सी देयर आर सो ब्लू, क्लियर स्काईज. रात को यू सी सो मेनी स्टार्स इन मिलियंस इफ नॉट मोर. एंड मानसरोवर यहाँ पे तो कैलाश इज नॉट फार, यू कैन सी कैलाश. सो द परिक्रमा ऑफ मानसरोवर एंड कैलाश इज, मुझे तो लगा जैसे मैं पृथ्वी पे नहीं हूँ, आई वाज समवेयर एल्स, बिकॉज यू फील अ डिफरेंट इमोशन वहाँ पे. मैं वहाँ पे देख रहा हूँ बिकॉज आई एम विजुअलाइजिंग दैट. वहाँ का जो नाइट है, आई थिंक बाय टिल 8:39 PM इट यूज्ड टू बी स्टिल प्रीटी ब्राइट. अलग होता है, पूरा अलग होता है. It is known to that Kshetra, Kailash Mansarovar, is known to have sadhus who, मैंने कहा ना कि they can convert themselves into light beings. वो sacred days पे, important days पे, they will take dip in the Manasarovar as lights. Not in a human form, as a light being. You'll see that light falling into the water. Okay. अद्भुत. ऐसे भी माना जाता है, एंड इट्स बीन सेड दैट इट इज अ प्लेस वेयर यूएफओज, एलियंस. भाई एलियंस का मतलब ये नहीं कि जो हम देखते हैं टीवी पे पिक्चर में, वैसे नहीं. स्पिरिचुअल बीइंग्स फ्रॉम अ डिफरेंट प्लैनेट, दे आल्सो कम टू दिस क्षेत्र, एंड इट्स सपोज्ड टू बी very very open to and conducive for UFOs to land. इवन कैलाश पर्वत जो है, मैंने देखा मेरे गुरु के साथ, वो बहुत बहुत अलग है. इट इज लाइक अ क्रिस्टल, ट्रायंगुलर शेप क्रिस्टल. एंड कहते हैं कि उस कैलाश पे ऐसे एंटिटीज बसते हैं जो ह्यूमन नहीं है. ऐसे कहा गया है कि कोई भी नॉर्मल जो लोग हैं, we've never been able to climb the Kailash. Of course, we are coming from the Hindu faith. Normally, we don't do, because Kailash वास करते हैं. हाँ, शिव का वास है वहाँ. और कैलाश is itself like a shivling, differently shaped, but a shivling. तो we can't climb a shivling. यार वो तो you only To pray. to shivling. ये बताइए कि जैसे स्वामी जी के साथ आप गए थे, आपको परिक्रमा का टास्क दिया था, तो परिक्रमा करते वक्त क्या फील किया कभी? मतलब शिव जी का प्रेजेंस फील होता है वहां पर? Actually, that is the main thing that you feel, the presence. People ask me, did you see Shiva? You can't see this energy. Have you seen electricity? No. No, but you can see it through light. Right. It comes in forms. Did I see Shiva at Kailash? Some things I can't reveal too much, but because it could be my own hallucination also. मुझे पता नहीं यार. कोई बोलेगा पागल कुछ भी बोल रहा है. And it's your best time. Yeah, it's my time. And I was with my guru. लेकिन हाँ, वहाँ पे महसूस तो किया मैंने वाइब्रेशंस. The vibrations किस प्रकार के थे? I would say vibrations of absolute purity, divinity. जब हम एक place of worship में जाते हैं, टेम्पल हो या चर्च हो या मॉस्क हो, when you get inside, you feel that silence, you feel quiet. वहाँ पे मुझे वो महसूस हुआ, especially when I was closer to Kailash.
ये कितने बज रहे थे रात के? Must be not very late because as it would get dark now, the tents were placed for us. Okay. But maybe around 7:30 in the night. वहाँ पे टाइम का कुछ पता नहीं चलता. It's like, you know, when somebody goes to Big Boss, no watch, right? Of course वो अलग ही एग्जाम्पल है, लेकिन ये तो लाइफ टाइम है. ये तो कुछ अलग ही है. तो ऐसा कभी हुआ कि रात में सडनली नींद खुली और लगा कि यार let me go and try? The only issue, there were two issues in my case, not problems actually, issues were, मैं मेरे गुरु की सेवा में था, तो I had to, my tent was beside my guru's tent. वो कभी भी बुला सकते थे. And I was in my guru's seva, so I just can't. I had to take Swamiji's permission. Second part is, वहाँ पे ऑक्सीजन की कमी बहुत रहती है, तो we are so tired. हम तो जहाँ थे ना, वहाँ से द कैलाश पर्वत was not very far, तो वहाँ पे ही थे. So तो मैं तो समझता हूँ काजी दैट शिव ने बुलाया इसलिए हम गए ना मुंबई से वहाँ. करेक्ट. सो वहाँ पर वो एक फियर या ऐसे फील नहीं होता क्योंकि इतनी सारी चीजें हैं, सडनली हवा में बहुत कुछ है. एहसास हुआ लेकिन डर नहीं लगा. Okay. एंड उसका मेन कारण है मेरे गुरु, बिकॉज यू आर विद योर गुरु. प्रोटेक्शन. हाँ, वो एक कवच जैसे थे मेरे लिए. Okay. तो आई वाज जस्ट एंड बीइंग इन माय गुरु सेवा एंड सीइंग द कैलाश अलोंग विद माय गुरु, और क्या चाहिए. इट वाज मोर ऑफ हैप्पीनेस देन फियर. आप ब्राह्मण हो मयूर काल में, हाँ. बट ऑल द वे आपका जो बिलीफ है वो अघोरीज की तरफ गया, तब फिर आपने मांस या फिर मदिरा ये सब का सेवन किया, तो वो चेंज ओवर कैसे आया? देखो हमारे में ऐसा था कि ब्राह्मण शुड बी बाय बिहेवियर. ओके. What you eat, what you drink is your personal choice. But anything you do in excess, थोड़ा खाया तो मिठा. ज्यादा खाया तो जहर. तो I was always led to believe कि be spiritual. You're a Brahman, follow the practices. I follow practices. हम थोड़ी मांस मच्छी खाते रहते हैं. But it is not that if you feel like leaving it, leave it. Main focus should be, the question, are you spiritual? Are you doing your japa, mantra japa? Are you in love with Mother Nature? And सबसे important, it is nice to be important, but it is more important to be nice. So be humble, be respectful, be polite, be a nice person. ऐसे लोग भी मिलते हैं काजी जो बहुत रिलीजियस है, बहुत स्पिरिचुअल है, बहुत रिचुअलिस्टिक है, बट when they talk to people, अच्छे इंसान नहीं है. They are very rude. rude भी है, फिर they will also think of how to cheat somebody. अरे यार तू, how can you be two extremes, man? So I believe that you got to be a good human being, and for me Brahman is by behavior. Brahmanatva should be through, of course you follow practices. I do my puja, I believe in rituals, but food cannot overpower you. It should be there to sustain you. I love good food because I've grown up in Mumbai. I'm a normal person, but that core has to be very strong, Kazi, of introspection, आत्मचिंतन, आत्मनिरीक्षण बहुत important है. तड़म्बा नाम के एक साधु को जो आपने देखा था, जो 8 फीट विशाल हाँ, था. मैंने नहीं देखा था, हाँ. सुबह ने देखा था. हाँ, सुबू ने देखा था. अभी मैं सुबू को तो आपसे ही रिलेट करूंगा. तो जो सुबू ने देखा था, क्या वो रियल लाइफ में एग्जिस्ट करते हैं? काफी सारे हैं, काफी सारे ऐसे दृष्टांत हैं जो मैं लिख नहीं पाता हूँ. ओके. तो ऐसे लोग हैं, ऐसे योगीज हैं जिन्होंने पर्पसफुली एक जन्म लिया है. ऐसे योगीज हैं जिनका फिजियोलॉजी कुछ अलग रहता है. एंड व्हाई नॉट? इफ यू लुक एट अ कोरियन पर्सन, कोरिया या जापानीज पर्सन, उनके आंखें अलग रहती हैं, लेकिन वो हैं ह्यूमंस ही. If you go to Masai Mara in Africa, the Masai tribes, they're by height, they're above 6 feet. Okay. Europeans typically are known to be huge होते हैं, मतलब tall and a bit fat. Typically, ये जो physiological changes होते हैं, वैसे ही yogis में ऐसे yogis की family होती है या tribes होते हैं, they look different. They can even have control over their genes the way they can.
They're so advanced. So in your research time, do you ever get a chance to meet these? I do, but I'm not allowed to reveal many things because that will affect me also. Okay. But yes, मतलब so some things do come out. अभी जो part 2 आ रहा है, which is also going to be published in तो November, सुबह आएगा गुरु के पास. आएगा और he will reveal, फिर the next thing starts about extracting the mantras जो लेके आया वो, and उसका transfer होता है into the guru. वो कैसे होता है और उसमें क्या difficulties आती हैं, and how Subbu transforms as a person. आपने इतने शिक्षा ली है अलग अलग सेक्स से, तो आपको क्या अंतर लगा सब में? Antar is in the way the sadhana is done. The techniques में अंतर है. फॉर एग्जाम्पल नागा बाबा और अघोरी में क्यों? बिकॉज दिखने में वो Classic काफी- example है, हाँ, हाँ, because they look very similar. करेक्ट. बट नागा बाबास के जो टेक्निक्स होते हैं वो अलग होते हैं. दे हैव अखाड़ा, उनकी साधना अलग होती है. अघोरी साधुस के भी गुरु होते हैं लेकिन उनके अखाड़े नहीं होते हैं. दे जस्ट, व्हाट आई नो इज दे हैव एक गुरु शिष्य में परंपरा होती है, बस अखाड़े नहीं होते हैं. यू विल नॉट सी अघोरी साधुस टू मैनी एट कुंभ मेला राइट. कंपेयर टू नागा साधुस, लेकिन लक्ष्य वही होता है. और एक उदाहरण देता हूँ, जो भक्ति मार्ग पे चलते हैं, जो ज्ञान मार्ग पे चलते हैं, दे आर ऑल मार्ग्स, दे आर ऑल पाथ्स. सो ज्ञान मार्ग ही ऐसे होता है कि दे विल लर्न द वेदास थ्रू द accumulation of knowledge. They'll become more and more stronger. You ask them any question, वो तर्क करेंगे आपके साथ. If you have a different point of view, they'll explain to you from their point of view. They study. ओके. अघोरी ऐसे नहीं है, उनका एक्सपीरियंशियल होता है. They will gain the mastery over their breathing by practicing pranayama. These are the differences. इतने टाइम से आप साधना कर रहे हो, इतने सारे पावर्स के आप कनेक्शन में हो, कुछ ऐसे इफेक्ट, इम्पैक्ट या कुछ ऐसे पावर्स आपके पास है? एक बताता हूँ कि I think I was born to become part of this journey of knowing about Aghoris. I was born, I surely know, to as my guru's shishya, Swami Sadhguru Shankarashram. And imagine करो यार, कितने लोगों को नसीब है कि to go to Kailash at 28 years old, me, with my guru. वहाँ पे 80 लोग थे, लेकिन उसमें से मुझे बुलाया गया and I came into सेवा of my guru. I mean, और क्या चाहिए? So it was प्रारब्धा, it was past life. उसमें कुछ powers हैं या नहीं मुझे पता नहीं, but I know for sure that some things are not to be discussed and opened out as well. उससे भी power कम होता है. Apart from your skin and your personality, how your life changed after Aghori the Untold Story? So my skin is the same, eyes are the same, but I think it's made me. I think my book has reached more people. Penguin approached me. That's a big deal. It's a big deal, and they offered me a deal, a book deal, for both part 1 and part 2, and they're releasing it in November. How is people reaction? पहले तो घर वालों का reaction बताओ. I think they were a bit surprised that I wrote about Aghori. My kids have yet to read it. Okay. मैं तो आर्यन तो बहुत पढ़ता है, लेकिन मैं बोला यार तू मेरा नहीं पढ़ रहा है. वो सब he reads all big books. Okay. बोलते no, Anu, he calls me Anu. It's not my genre. बोला अभी छोड़ तू, take your time. कर and ले भाई read. जब करना है. But I think the people's reaction was very positive, in the sense like an eye opener. I have so many people who connect with me on Instagram, and the first thing they say is thank you for giving me an insight into who the Aghoris are, because so much has been shown which is so untrue. Yeah. And आजकल तो सब YouTube देखते हैं ना, the youngsters. So mine, I think my book came as a breath of fresh air for them. क्योंकि नॉर्मल अगर कोई नागा बाबा या अगर अघोरी चला जाएगा तो लोग डरते हैं, वो उनके पास भी नहीं जाएंगे. उनको लगता है कुछ कर देगा, कुछ ये हो जाएगा. हम गए थे बेलगाम some years back with my uncle in Jambuti forest. Okay.
तो वहाँ पे मेरे अंकल took a bottle of alcohol on the way. My dad was there and I thought maybe they won't have a good time. देखा तो जाम्बूटी फॉरेस्ट के पहले गेस्ट हाउस के पीछे एक छोटी सी मंदिर है, उसमें एक साधु रहता था। Okay. वो बॉटल वॉज फॉर हिम। He Oh. was never a sadhu. He was running away from the law. It broke his head. ये बहुत से उधर काशी मथुरा में भी बहुत है ये। हाँ, You but cannot- यही है, you हाँ, don't know, positive and negative। You look like Perceptions somebody are looks there. like a yogi, but may not be. आज की जो भागदौड़ वाली जिंदगी है, बीइंग अ इंटरनेशनल ट्रेनर, मोटिवेशनल स्पीकर, आप यूथ्स के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? Understand, develop the understanding, be curious, and develop the understanding of the connection between spirituality and professionalism. Because I feel, that if you know what is spirituality, really understand it, it will purify you, it will increase your characteristics inside you, like your confidence, the maturity level, and that will help you to become a better leader as well. And getting drawn into social media is good, but itna bhi nahi ki aap you forget about your own life. So work life balance, studies, entertainment, मस्ती, आध्यात्म, इसमें एक try to bring a संतुलन, a balance. I think that is what I feel can help, because people either go completely spiritual, नहीं तो completely into entertainment. वो नहीं, बहुत it has to imbalance be- हो It has to be, and so many youngsters. When I say youngsters, I'm talking about 21, 22 years old. We should travel more, go to the mountains, talk to the mountains, listen to the waves of the ocean. And if you can, buy a shank and keep it in your house and learn to play the shank, because the vibrations of the shank are extremely strong but very, very pure and positive. ट्रैवल की बात की आपने, तो मुझे भी ये पूछना है आपसे कि आपके जो स्पिरिचुअलिटी प्रोग्राम्स होते हैं, Yeah. जो हिमालयस में अनाहता। ऐसी जो भी होते हैं, तो उसको ज्वाइन करने के लिए लोग क्या करें? देखो, उसके लिए वी अनाउंस द डेट्स अभी नवंबर में 22nd, 23rd, 24th। दैट इज ऑन योर वेबसाइट? No, On your Instagram? अभी क्या हो रहा है, वी ओनली लुक फॉर 10 to 15 पीपल। क्या होता है ना, ये रिट्रीट्स ऐसे होते हैं कि जहाँ पे वी फील बीइंग साइलेंट, बीइंग क्वाइट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो वी आर नॉट पूरा झुंड लेके गए, पिकनिक नहीं है, सो वी डोंट एडवर्टाइज। बिकॉज अभी नवंबर के अनाहता में 11 लोग आ रहे हैं, दे पेड द एडवांस एंड दे कमिंग 11 एंड वी आर ओनली लुकिंग एट 15। अभी बवाल करेंगे, बहुत पब्लिसिटी करेंगे, तो बढ़ाना पड़ेगा। हाँ, वी डोंट वांट दैट। वी विल हैव मोर नंबर ऑफ अनाथास, ज्यादा करेंगे, लेकिन हर एक में 15, मैक्सिमम में भी 17-18। मतलब जो आप कंट्रोल कर सकते हो। Yeah, and they also should have the freedom to be alone ना। ये अघोरी सब्जेक्ट क्यों चुना आपने? जब मैं छोटा लड़का था, बड़ी शरारत करता था, मेरी चोरी पकड़ी जाती। तो मेरी चोरी तो पकड़ी नहीं गई, टचवुड, बड़ी शरारत करता था, वो भी है। लेकिन जब मैं छोटा लड़का था, I went when I was 9 years old. I went on a, हम जाते ना सैटरडे को हाँ। हनुमान टेम्पल। मंदिर, हाँ। तो हमारे घर के सामने ही हनुमान मंदिर था, दादर नहीं में? है, नहीं। I stayed specifically in Mughal Lane, ओके। माहिम। हाँ हाँ। हमारे सोसाइटी के गेट के सामने वो मंदिर था। वहां पे बाहर एक व्यक्ति बैठे थे, जो बाद में मुझे पता चला वो अघोरी साधु था, भस्म लगाया था। आई एम टॉकिंग अबाउट व्हेन आई वाज 9-10 years old। तो बहुत बहुत टाइम पहले, अभी तो यू कांट सी। ही वाज सिटिंग आउटसाइड एंड मैं ना डरने के बजाय मैं और उनके तरफ गया, बिकॉज आई वाज क्यूरियस कि ये क्या है। एंड ही हैड बोर्न अ लंगोट, ओके। बस। तो ऑब्वियसली कुछ अलग ही था भाई। आई हैड नॉट सीन अ दृश्य लाइक दैट। सो माय फादर आल्सो सेड होगा कोई साधु, बट लेटर ऑन व्हेन आई गॉट टू अंडरस्टैंड, बट हाँ, उससे ना मेरे अंदर एक जागृति हो गई कि ये है क्या, कोई तो एंटिटी है। अवेकन की द क्वेश्चन कि ये कौन है ये एंटिटी। लंबे जटा भी थे, भस्म भी था, एंड दैट्स आई थिंक वेयर इट स्टार्टेड माय
urge to know more about Aghori sadhus. Then मेरे ट्रेनिंग के करियर में ऐसे बंदे मिले जिन्होंने मुझे उनके अंकल के द्वारा introduce me to Aghoris. Real Aghoris. To Aghoris, real Aghoris. Because it came through contact. पहले तो मेरी तो हो गई. I can't use that word, but because you are not used to that kind of a visual. Yeah. Normally पुरोहित होते हैं, भटजी होते हैं, very nice discipline. But ये तो बहुत अलग थे और जो बातें हुई, of course they were very cautious not to tell me everything. But I went only as a sadhaka to find out who they are, not as a journalist, not as कि कितने व्यूज आएंगे. मेरे पास मैं ऑलवेज कहता हूँ मोबाइल नहीं था मेरे पास, मैंने रख दिया था so that they should not feel कि मैं कुछ रिकॉर्ड कर रहा हूँ. But I asked them the questions which I was very clear कि ये पूछना है. चांस मिल रहा है यार, चांस पे डांस तो करना ही है. क्या पूछा था? भाई शिवा, आप कैसे करते हो? आप स्मशान में ही क्यों, जैसे आपने मुझे पूछा, मैंने उनको पूछा, आप स्मशान में ही क्यों साधना करते हैं? आप भस्म क्यों इतना लगाते हैं? Of course, I had to be a bit careful because I didn't want to get them angry also. कि कुछ भी पूछो मत. I also asked them about सिद्धीज, पावर्स, और कौन से पावर्स कभी आते हैं. मुझे तभी ये पता चला कि दे हैव अ गुरु. अघोरियों के गुरु भी होते हैं. ऐसे नहीं कि बेटा कोई, they have to be under someone guidance. तो काफ़ी चीज़ें उन्होंने बताई. सम थिंग्स आई कांट रिवील, इवन पुस्तक में भी मैंने नहीं बोला. सम क्रियाज दे डू, जो उन्होंने मुझे बताया क्यों करते हैं, लेकिन सुनने में भी डर लगता है ऐसे क्रियाज में. अघोरीज जो और साधना करते हैं, दे कैन रीच अ पॉइंट कि उनको ना उनके ही शरीर के जो ऑर्गन्स हैं उसके ऊपर वो कंट्रोल लेके आ सकते हैं. Oh. They can control the beating of the heart. They can control the functioning of the organs. Which is why normally जो योगा बहुत करते हैं या ध्यान बहुत करते हैं, you cannot guess their age. They look different. अघोरी जो मैं मिला, they looked different. अघोरीज as such कुछ अलग दिखते हैं. कुंभ मेला में जाओगे तो you meet a few अघोरीज there. ज़्यादा करके नागा साधुस होते हैं, लेकिन अलग होते हैं, लेकिन पाथ अलग है, लेकिन डेस्टिनेशन इज सेम दैट वे. सो आई स्टार्टेड, आई थिंक, माय जर्नी विद द क्वेश्चन टू माय फादर, ये है कौन? व्हेन आई वाज 9 years old. प्रसाद खाते खाते पूछा. उसके बाद कभी दिखे नहीं वो. बट आई वाज लकी, आई थिंक, दैट एट दैट टाइम आई गॉट, that was an inspiration. या बिकॉज इट गॉट मी थिंकिंग ना. आप कुछ देखते तो बोलते ये क्या है. सो एज अ किड आई थिंक वी आर मोर क्यूरियस एज किड्स. एक होता है क्यूरियोसिटी होती है कि क्या होता है, ये क्या है, वो क्या है. तो आई वॉज लाइक दैट. अभी भी वैसे ही हूँ. आई एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ अर्थ एंड इट्स कनेक्शन विद द मून. ये टाइड्स होते हैं ना, टाइड्स, हाई टाइड्स, लो टाइड्स. ऑल्सो अमावस्या के दिन ऐसे कहा जाता है कि कुत्ते बहुत भौंकते हैं. एक्चुअली होता है, मैंने भी देखा. हाँ, मैंने भी देखा है. तो क्यों होता है? सो there is a magnetic force, earth and moon का. So moon क्या है? That it pulls and then releases, which is why the waves, currents होते हैं. ये सब I'm keen on. I'm curious. Hopefully शायद ये जन्म में, अगले जन्म में कुछ मिलेगा, उत्तर मिलेगा. अघोरी अनटोल्ड स्टोरी. मुझे इससे पहले की लाइफ जाननी है कि who's मयूर कालबाग, मतलब घर पे कौन कौन है, क्या करते थे, एंड कैसे इंस्पायर हुए. I come from a Konkani background. I'm a Chitrapur Saraswat Brahmin. Okay. Technically speaking, we are a small community. हम कोंकणी बोलते हैं. And we have a कुलदेव. तो बचपन से ना कुलदेव, मतलब टेम्पल में हम जाते थे गोवा में, मंगेशी करके. तो कनेक्शन विद महादेव हैपेंड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. आई स्टडीड, आई डिड माय MBA. वो सब तो करना पड़ता है, वो सब हो गया. एज आई वाज डूइंग दैट, माय कनेक्शन विद मंगेशी टेम्पल, गोवा, एंड माय चित्रापुर मठ, जो हमारा मठ है इन माय विलेज ऑफ चित्रापुर, वहां पे आना जाना काफी होता था. तो एज अ किड ऑल्सो ना वो संस्कार हो रहे थे मेरे पे. मस्ती होती थी, सब कुछ होता था, लेकिन दैट पार्ट वाज ऑलवेज इंपॉर्टेंट फॉर माय पेरेंट्स
perspective. जी My sister and me and my parents and my uncle, we all would drive to my native place. On the way, stop at Mangeshi, ओके then go to Shankar Durga temple, Devi का temple है गोवा में, then go to my native place. So educationally वो तो हो गया, सब लोग करते तो मैंने भी किया. I did work with a financial institution after my MBA. Okay. And that first boss is my mentor now, Vineet Oh. Bhatnagar. He is my mentor. ओके According to me, he was the reason I was able to go to Shirali, my native place. चित्रापुर में एक छोटा गांव है शिराली. वहाँ पे जाने की permission सर ने दी थी. And he is now become my mentor. तो ऐसे I feel the journey has moved ahead. लेकिन 97 में when I was working, I got to meet my guru, स्वामी सद्योजात शंकर आश्रम. लेकिन उसके पहले बहुत मस्ती किया, बहुत. I don't think I've मतलब कुछ अलग था. मस्ती अभी भी है. लेकिन तभी ना, thanks to my father, he allowed me to do many things in life, good things in life. He put me into lawn tennis. ओह So I played lawn tennis. I used to get punished in school because मैं ना पीछे, I was a tall person, so I was the last bencher. तो बेंच पे वो मैं ठाक टूक बजाता था. Wow. तो it had reached my parents कि ये तबला बजा रहा है. तबला बजाता है. तो my father put in तबला. वाह देखो पॉजिटिविटी वाह See, he हमारे पेरेंट्स challenged तो it. कूट देते हैं. नहीं वो भी हो गया. अच्छा वो भी हुआ था. उन्होंने भी उनका तबला तबला बजाया. I know. हाँ, बनता है इतना तो. हाँ तो बच गया लेकिन बच नहीं गया मैं. But then he put me into tabla. So tennis भी हो गया. I think he was very keen. I remember पिताजी बोलते थे कि तुम पढ़ाई तो करो लेकिन your personality development has to be very important. वो सबसे important है. So he told me to go ahead do MBA because personality बढ़ेगी. लेकिन my real development happened after I met my guru, Swami Sadyojat Shankar Ashram Swamiji. And I really regard that entity as my God, my Mahadev. And every time Swami, I refer to him as Swamiji. Every time Swamiji speaks ना, मैं notes बनाता हूँ and उनसे इतना मैं सीखा हूँ. Because they're really souls who have meditated. हम 1 घंटा भी बैठेंगे, आधा घंटा भी बैठेंगे मेडिटेशन के लिए, हमें लगता है बहुत बड़ा किया. वो उनका जीवन ही मेडिटेशन है. तो इमेजिन करो द काइंड ऑफ स्ट्रेंथ दे हैव, द पावर्स दे हैव. अब जब आप स्वामी जी के रास्ते पे जा रहे थे तब शादी हो चुकी थी? नहीं. अच्छा. आई वाज 21. और शादी कितने साल में हुई? 28. 28 तक का तो यू आर ऑन दैट पाथ राइट? अरे बाबा, एक ऐसा प्रसंग आया था जब भी आई वाज नॉट इनटू द, आप क्या बोले, ऑन द पाथ नहीं था मैं, इनसाइड. ओह वैराग्य बोलते हैं. वैराग्य मतलब सब छोड़ बाड़ के, वो भी आया था. शिव इज वैरागी. I felt like leaving everything and becoming a yogi. Seriously. साइन क्या दिए अपने घर वालों को कि भाई ये क्या कर रहा है? ये पता, I used to go a lot to meet my guru. मैं प्रवचन सुनता था घर पे. I used to sit, wake up at sometimes 2:33 in the morning and sit for meditation because I wanted to experience that. अच्छा डाटा वाटा नहीं भी नहीं कि भाई कर क्या रहे हो, मतलब कहाँ कॉर्पोरेट ट्रेनर, फिर कहाँ ये. मैं सी जब तक शादी हो गई ना, वो जो था ना वैराग्य, वो सब नीचे आ चुका था. सो आई थिंक इट वाज, टाइमिंग वाज वेरी परफेक्ट. मैं शादी, बिकॉज आई वुड नॉट हैव इवन गॉटन मैरिड अदरवाइज. ओह बिकॉज इट हैड रीच्ड हाँ वो हाँ एक अलग ही लेवल पे था. एंड यू डोंट गेट द फीलिंग कि मैं क्यों ऐसे हो रहा हूँ. हो रहा है बस. लाइक आई वुड गो टू माई नेटिव प्लेस, गो ऑन फ्राइडे, कम बैक ऑन मंडे. बस वहाँ जाके आई वॉन्ट टू स्पेंड सम टाइम विद माई गुरु, बी देयर, उस माहौल को महसूस करो. मे बी इट वॉज पार्ट ऑफ माई ग्रोथ. वो होना था. लेकिन टच वुड कि आई गुरु ओनली टोल्ड मी दैट अभी नहीं. बिकॉज एक बार ऐसे भी हुआ कि आई स्पोक टू माई गुरु अबाउट इट कि मुझे लेना है संसार को. हाँ. तो वो बोले जाओ फिर, अभी जाओ. इट वॉज पीपल आर, इट वॉज बिकॉज ही, द वे ही सेड ना, जिस तरीके से वो बोले, इट वॉज लाइक टेलिंग मी, आर यू रियली सेइंग इट, कि ऐसे. बिकॉज जिसको सच्ची में होता है ना, वो बोलता नहीं, वो निकल जाता है. मैं बोल रहा था. सो ही सेड इट विल टेक टाइम, अभी नहीं. यू कॉन्सेंट्रेट ऑन योर वर्क, योर फ्यूचर मैरिज, वो सब करो, बिकॉज दैट्स पार्ट ऑफ दिस लाइफ.
वो बहुत बड़ी एक टर्निंग पॉइंट थी मेरे लिए. इंटरनली आई थॉट कि बाबा, देन आई चेंज माय पर्सपेक्टिव. एंड अंदर तो बहुत कीड़े थे यार, मार्केटिंग करना है, सेल्स करना है, वो एम्बिशन था. बट स्पिरिचुअलिटी आ गई लाइफ में तो वो कम हो गया. माइनस होता गया. So once my guru spoke to me, वो बढ़ गया. After Kailash ना, काजी, after I came back from Kailash, वहाँ जाने के बाद उत्स्फूर्तता, उमंग जो था, उत्साह अंदर, to do something on my own, वो बहुत बढ़ गया. So when I came back from Kailash, मानसरोवर, मैंने अगेन गुरु से बात की कि मुझे ये मेरी प्लान है, मेरे को ट्रेनिंग में कुछ करना है. So my guru didn't say, okay, no. Swamiji said, have you thought about it? You go properly see the pros and cons, मतलब positive and negative देखो, then come back. तो मैंने किया वो, मतलब मेरे गुरु हैं वो. So he didn't just say okay, no, he said, he tested me कि कर सकोगे, have you done your homework, ऐसे नहीं. तो that training का career भी शुरू हो गया when I was 29, and within a few months I got married. But that was arranged marriage, वो होता है अपने community में typically. बट मेरा करियर की शुरुआत जो है, इट हैपेंड ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंगली. बट एक था, आने के बाद फ्रॉम कैलाश वो करना है, डेफिनेट हो गया. मेरी माता जी ने बहुत अच्छा पॉइंट मुझे मेरे में डाल दिया. शी सेड, इफ यू डोंट सक्सीड, चल तो शुरू करता है ट्रेनिंग, नहीं मिलती ट्रेनिंग, कुछ होता नहीं है, आर यू कॉन्फिडेंट ऑफ कमिंग बैक एंड गेटिंग अ जॉब? I said yes, मार्केटिंग में तो मिल सकता है, मेरा तो था, I mean I was a sales guy. So she said try करो ना फिर, give it 1 year and see. बस when your mummy tells you that, एक अलग ही boost, अलग ही boost मिलता है यार. I think that also was a game changer for me. My mother's push, normally their mothers are a bit worried, conservative. But नौकरी कर ले यार, कहाँ एक्सपेरिमेंट कर रहा है. My first big client was Tata Motors. Oh. Of course एक दो छोटे मिले, बिकॉज मैं तो हाथ पैर हिला मारता था कि कहाँ मिलेगा. लेकिन द गुड कंपनी विथ हुम आई वर्कड एज अ एक्सटर्नल ट्रेनर फॉर मोर देन 15 years, जिसके वजह से मैं पूना शिफ्ट हो गया. हर वीक 2 प्रोग्राम्स होते थे, एंड व्हाट आई वुड अर्न इन अ मंथ ना, वहां पे मुझे 2 दिन में मिलते थे. इन 2 days आई वुड गेट व्हाट आई वुड अर्न इन अ मंथ. बट कंसिस्टेंसी भी होनी जरूरी थी ना. यू कैन जस्ट से ये एंड देन फॉरगेट अबाउट इट. राइट. सो आई आल्सो चेंज माई सेल्फ, ट्रांसफॉर्म माई सेल्फ. और गुरु भी थे, मम्मी भी थी, एंड दैट्स प्रॉब्ली हाउ. बीवी कहाँ थी यहाँ पर? बीवी केम इनटू माय लाइफ इन टू, डोंट शॉक मी लाइक दैट. देखो अभी भूल गया. 2003 में एंगेजमेंट हुआ, 2004 में शादी हो गई. आदमी कुछ भी कर ले, आदमी वहां जाके डरता तो है. आई नो. सो बीवी ने बोला नहीं क्या ये अघोरी एंड ऑल, डरा क्यों रहे हो? मैंने सीधा बोल दिया, भाई मैं ऐसा हूँ, बिकॉज आई डोंट वांटेड टू गेट शॉक यार कि ये क्या है. मैं अचानक मैं बेड पे उठ के बैठ गया, सडनली देखा तो मयूर इज लेविटेटिंग. ऐसा I told her I'm pretty cool, but ये मेरा, but I focus more on my work. Okay. Because ये personal matter होता है ठीक है, but work wise you should know that I'm not a 9 to 5 person. And मेरी traveling भी होगी, तो she was okay. अच्छा. Because वो इतना वो प्रेम में थी, शायद. मतलब ऐसे बंदे के साथ तो कोई भी प्यार में पड़ जाएगा. I hope so, but she did fall in love and blessed me with some 2 lovely babies also. God bless her. But she was okay because she's also my guru's devotee. Oh, तो same connection. हाँ, वो बहुत important था यार. नहीं तो वो पूछती थी ये कौन है, डर जाती नॉर्मल बंदी होती तो. इनफैक्ट एंगेजमेंट जो था, we both went and took my guru's blessings also. Wow. So I want to quickly go for rapid fire round with you. Sure. So, profession you love the most, writer or speaker? Writer. One secret which people don't know about you. That I've always wanted to do skydiving. मोक्ष या live forever? मोक्ष, for sure मोक्ष. अगले जन्म में क्या बनकर जन्म लेना चाहेंगे आप? I would love to be honestly I would love to be a serpent. ये सांप से एक अलग ही कनेक्शन है आपका. Because of Shiva, of course. Yes, and nagas. What is your hidden talent? I think clay work. Clay के साथ खेलना, because I never knew that. It's a hidden talent for me also. कभी बीवी ने डांटा है recently? हर दिन.
ऐसे क्या कांड करते हो जो हर दिन डांट पड़ती है? अरे आई एम द मोस्ट ब्यूटिफुली अनटाइडी पर्सन. अच्छा. वो इतना बिखरा हुआ रहता है बिकॉज आई डोंट, मेरे पेरेंट्स यहाँ पे रहते हैं. इफ यू कम टू पुणे टू माय ऑफिस रूम, तू भी मुझे डांटेगा भाई. ये मतलब- क्या है ये? मतलब अगर आने वाले वक्त में पूना की सड़कों पर ये पाए जाए तो समझ जाओ. I know. What is the title of, what will be the title of your own biography? The non-conformist trainer. ये मैंने प्लान किया है. हिंदी में अनुवाद करे. जो एक अलग किस्म का ट्रेनर. अच्छा. So in English, the one who does not conform to anything. I really want to write that. 22 years as a trainer there. और मेरा तरीका It's a बहुत big journey. I dance in my training programs. मैं जेम्बे लेके जाता हूँ. मतलब Drums. मतलब पैसे के लिए क्या क्या करना पड़ता है? अबे यार. That's all for the day. Thank you so much. It's an honor talking to you. Thank you so much for I think coming. this was by one the of the most enjoyable podcasts I've had. इतने honor, हंसे, honor. it's fantastic. I like the way, you know, I was able to speak about Aghori sadhus. At the same time, my wife's darts, whatever you call it. So Your सब कुछ आ गया personal उसमें. life भी. No, it was good. It was good.